So we already discussed Old English, how Old English was an inflectional language, a synthetic language, where word order could be changed without changing the meaning, as you find in Hindi and Sanskrit even today. Okay, so English, especially the Old English, was also a synthetic language. That means you could change the word order without changing the meaning. But as we reach the Middle English period, what happens? There are a lot of changes which happen over time. We discussed in the beginning how language is a kind of organic, uh, it is a kind of, what do you call that, organic system, right? So it undergoes changes over a period of time. So we discussed how external as well as internal changes happen and how they affect language, especially when we discuss English language, right? So Middle English, this period briefly falls uh, somewhere you will find it from 1050 to 1500. So roughly after the Norman conquest, you start it after the Norman conquest. What is Norman conquest? You already know the Duke of Normandy. He had defeated the British, these troops, and he had, established his rule over this part of the world, which you know today as England. And these Normans, they were French in their, you know, lifestyle, and their language was also French, right? So now French came to be established as the language of the court, the language of the nobility, the language of the upper class, the refined class, and English, which was just in tits bits, it was not the English that you know today. It was kind of dialects which were spoken in different parts of England, right? Uh, for example, Northumbrian, then the southern dialect, East Midland and West Midland. So English was not a unified language. It did not have a standard vocabulary. And this Norman conquest in 1066 set the French rule there. And then there were certain things which happened which were in favor of English. English was preferred after certain incidents. The first and foremost and the most important one was the Hundred Years' War with the French, right? So, this Hundred Years' War had embittered or created a kind of bitterness in the heart of these English people towards the French. So they wanted something of their own. So there was growth of nationalism, there was growth of nationalistic spirit, and uh, that was a time favorable for not only setting up English but also taking it further. Okay, so this 100 years war acted as a kind of trigger. So people wanted to have their own language. Okay, so they uh, started hating a kind of thing, the French. So finally, the major change came when, by a government decree or order, the French was replaced by English in courts. So the hearing or the matters of the court were to be, dealt in English now. So French was replaced. Similarly, in schools, colleges, English became a medium of education or instruction. तो ये सारी चीजें थी जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद हुई. एक तो 100 years वॉर, जिससे लोग जो थे वो परेशान हो गए थे. वो चाहते थे कि उनका अपना कुछ हो. तो एक एक फर्टाइल पीरियड था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. Okay. Second reason, you already know the Black Death, or the plague, Great Plague, which had wiped out almost a third of the population of the working class. क्योंकि वो plague which spread very fast in these unorganized
inhygienic colonies where the local British people they lived. और इससे क्या हुआ, जो वर्किंग क्लास थी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी. It was reduced drastically, right? So the dependence of the rulers, okay, that increased on the people who were just there. जो बचे हुए थे अब वो कम थे. तो सप्लाई और डिमांड का सारा खेल है. आ, आपको पता है अगर टमाटर की अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, राइट? और उसी तरह से अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, obviously the prices will come down. So that's what happened, you know. There were many takers but the workers were few. So that is how these French nobles they also started learning the language of this common people. तो ये सारे changes थे. और सबसे बड़ा जो एक significant contribution to that was of Geoffrey Chaucer, that how he not only set English as a standard language but also used it in literature, making it a perfect medium for literary expression through his that poem, the Canterbury Tales. तो ये सारी चीजें. उससे पहले एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मैंने कवर कर लिया. 100 years वॉर जिससे फ्रेंच आई. उससे पहले जो थे वो रोमन्स रूल कर रहे थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, तो उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी उसमें हो गया था. लॉट ऑफ इट these Latin words were already in English, right? और उसके बाद फिर सेंट ऑगस्टीन came with the preachings of Christianity. तो Latin जो थी that was also a major language during those times. So, precisely if you want to say, there were three languages. The language of the rulers was French, the language of the court was Latin, and the language of the common people was English. Okay, so ये सारी चीजें जो थी ये उस वक्त हो रही थी. So now if you talk about what happened, what changes happened in the language, सबसे पहला है the great grammatical shift. इसके ऊपर short note आपसे पूछ सकते हैं, what was the great grammatical shift? So great grammatical shift वो shift है where you find that English language from a synthetic turns to be an analytic one. I have already told you what is a synthetic language. Synthetic language वो language होती है जिसमें हम word order change कर सकते हैं without changing the meaning. कैसे करते हैं हम वो? Through inflectional endings. Inflectional endings, right? जो word है, verb है, उसकी जो endings हैं उनको बदल के, जैसे इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत अभी भी सिंथेटिक लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि एक ही चीज को आप दो तीन तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हो. लेकिन इंग्लिश में अब जो एक फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर है, यू कैनॉट चेंज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. सो ये बहुत बड़ा ग्रामेटिकल शिफ्ट हुआ ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश तक आते आते. वो एक सिंथेटिक से एनालिटिक लैंग्वेज बन गई जहां पे वर्ड ऑर्डर और प्रपोजिशन जो थे वो इंक्रीज, वर्ड ऑर्डर जो था वो फिक्स हो गया, राइट? देन जो सिंथेटिक ओल्ड इंग्लिश थी बहुत सारी इन्फ्लेक्शंस थी, तो फ्री वर्ड ऑर्डर था, राइट? हिंदी की तरह से राम ने रावण को मारा, राइट? सो यू कैन ऑल्सो से रावण को मारा राम ने, ठीक है, मारा राम ने रावण को. सो मीनिंग इज सेम बट यू आर चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर. तो इसी तरह की इन्फ्लेक्शंस जो थी ओल्ड इंग्लिश में भी थी, बट वंस यू रीच दिस मिडल इंग्लिश, these inflections they are reduced by a great number, and that's why it becomes a kind of analytic middle English language जिसमें fixed word order है और number of prepositions जो है वो बढ़ जाती हैं. So there is a great inflection loss. जो एंडिंग्स होती थी, जैसे जो वॉवल्स के साथ ए आई ओ, तो वहां से सिर्फ वो सारी की सारी ड्रॉप हो जाती हैं, सिर्फ ई बचती है. एंड दिस शिफ्ट वाज नॉट ओवरनाइट, इट वाज अ काइंड ऑफ ग्रेजुअल इरोजन. Okay, it took centuries, okay, and it took a lot of effort as well as a lot of time. Then जो this decline in inflectional endings वो कैसे हुआ?
that we have already covered. Still, just to remind you, okay, जो earliest phonetic change था, that was transformation of the terminal m into n. जो last में m था, m मतलब म, m नहीं बोलेंगे इसको हम, क्योंकि phonetic है. I have already explained you the phonetics chart. If you talk about phonetics, then this m symbol, this alphabet m is not m, it's m. म. तो म जो था वो न बना, न, और फाइनली क्या हुआ, वो न भी ड्रॉप हो गया एक साथ ही. और तो ये पहला चेंज था. म जो था वो न में बदला, और न जो था बाद में वो भी हट गया. देन इसके साथ साथ जो वॉवेल्स थे, वॉवेल साउंड्स, ओके, जो हमने डिस्कस किए, और फिलहाल यहाँ पे तुम वॉवेल समझो, ए, ओ, यू एंड ई. जो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स होती थी वो खत्म हो गई, और सिर्फ ई बच गया लास्ट में, ई, राइट. जैसे एग्जांपल दिया है इसने, जैसे डेटिव फॉर्म ऑफ गोदम, गोदम से गोदन बना, एंड गोदन फिर सिंपली गुड, गुड जिसको आप गुड बोलते हो मॉडर्न इंग्लिश में, वो गुड. अब नो नो वी कैनॉट रिलेट थिंग्स, you know how they were pronounced in old English, so थोड़ा सा मुश्किल है, but for the sake of examination you have to you know learn it, राइट. तो इस तरह से पता चलता है कि कैसे कॉन्सोनेंट्स एंड जो वोकल एंडिंग्स थी वो सिस्टमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो गई, राइट. तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. म न बना, फिर न भी गायब हो गया, और साथ में जो वॉल साउंड से, उनमें से जो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स थी वो भी एक सिंगल रह गई, ई, right? Or then what was lost? These distinct case endings for nouns and adjectives. You know, four types of cases: nominative, accusative, dative, and possessive, right? Genitive, sorry, genitive. ये चार केसेस होते थे, और इसके हिसाब से आपके नाउन बदलते थे, राइट. जैसे हिंदी में अभी भी लड़का, लड़की, लड़के, या लड़का, लड़के, राइट. ओके, सो हर केस के लिए अलग अलग नाउन और एडजेक्टिव, फोर केसेस के लिए फोर अलग अलग तरह के होते थे, तो वो खत्म हो गए. सेकेंड, ग्रामेटिकल जेंडर डिस्टिंक्शंस. जो ग्रामेटिकल जेंडर था, जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें ग्रामेटिकल जेंडर था, दैट विल डिस्कस सेपरेटली व्हेन वी रीच देयर. और नंबर डिस्टिंक्शन भी लगभग सिर्फ दो या एक दो में रहेगी, राइट. सो नाउ changes in noun. What were the changes in noun? Noun is the name, that means everything in this world has got a name, and every name is a noun. Simple सी definition. ज्यादा वो नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, कभी पर्सन भूल जाते हो, कभी प्लेस भूल जाते हो, कभी थिंग भूल जाते हो, कभी आइडिया भूल जाते हो. So the complete definition and simple to understand definition of noun is that noun is the name of anything, and everything in this world has got a name, and every name is a noun. चाहे वो इंसान है, चाहे वो चीज है, चाहे कोई आइडिया है, ईमानदारी, बहादुरी, और ये सारी चीजें. सो ओल्ड इंग्लिश में जो नाउन्स थे वो बहुत सारी डिक्लेंशंस थी उनकी, सिंगुलर, प्लूरल. लेकिन मिडल इंग्लिश में आते आते दे वर ड्रामेटिकली सिंप्लीफाइड. जैसे ओल्ड इंग्लिश में एक ही नाउन की यू कैन सी सो मेनी फॉर्म्स, राइट. तो जो मिडल इंग्लिश में आते आते वो तीन ही रह गई, ओके. सो ओल्ड इंग्लिश में यू हैड डिक्लेंशंस फॉर ऑल द केसेस. चार केसेस हैं: nominative, accusative, genitive and dative. कर्ता, कर्म, पोजेशन, और एक होता है किसी को संबोधन, संबोधन, हे, अरे. सो पढ़े तुमने, कर्ता ने कर्म को करण से, राइट, संबोधन, हे, अरे, राइट. सो मल्टीपल डिक्लेंशंस होती थी. नाउन के चार केस होते थे: नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव एंड डेटिव. और उनके लिए, हर एक के लिए अलग अलग सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होती थी. बट लेट मिडिल इंग्लिश में आते आते बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी, जो एक सिर्फ प्लूरल फॉर्म
रहेगी एस लगा के। ओके, एंड और कुछ जो थे वो कुछ जो ओल्ड फॉर्म्स थी, फॉर एग्जांपल स्टिल यू आर यूजिंग चाइल्ड का चिल्ड्रन बोलते हैं आप, ऑक्स का ऑक्सन, और फॉक्स का जो फेमिनिन होता है दैट इज विक्सन। तो इस तरह से ये ईएन वाले कुछ ही बचे हुए हैं विद ईएन एंडिंग जो ओल्ड इंग्लिश से आए हो, राइट। सो दिस वाज चेंज इन द नाउन। सो जो डेटिव प्लूरल एस था वो दोनों में लगने लगा नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, और जो ई एन प्लूरल था वो सब जगह पे जो बचे हुए थे उनमें यूज होता है। देन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव में यू ऑलरेडी नो दैट ओल्ड इंग्लिश में देयर वर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, उसकी बहुत सारी इन्फ्लेक्शंस थी, ठीक है, जैसे हिंदी में आज भी है अच्छा, अच्छी, अच्छे, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ गुड है, गुड, राइट। तो यू टॉक अबाउट द मिडिल इंग्लिश, तो देयर वाज अ लेवलिंग, लेवलिंग हो गया। जो पहले आपने देखा वहां पे बहुत सारी पांच छह थी, गोड, गोडम, गोडन, ऐसा ऐसा करके, राइट। तो यहाँ पे आगे क्या हुआ, लेवल्ड होगी, क्या हो गया, जो सारे केसेस के लिए जो नॉमिनेटिव सिंगुलर और प्लूरल था वही यूज होने लगा, राइट। नॉमिनेटिव सिंगुलर एंड प्लूरल ओनली। ओके, और लास्ट में क्या, ये जो ई जो था लास्ट में एंड में, ये भी phonetically it also got weakened and finally it was dropped। चौसर मॉडर्न इंग्लिश में तो ये लास्ट वाला ई खत्म ही हो गया। और जो चौसर का टाइम था उस वक्त तक लगभग ये एडजेक्टिव जो थे वो लगभग अपनी फाइनल फॉर्मल यूनिफॉर्मिटी में आ गए थे, राइट। इफ यू टॉक अबाउट प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए, बहुत कम हो गए, एंड many old English forms they collapsed into single form। ओके, एंड जैसे अब तक दो सर्वाइवर जो इसमें बचे हुए, द एंड दैट। Okay, so the personal pronouns also they changed more slowly। इनमें थोड़ा चेंज जो था वो थोड़ा स्लो था। जो ड्यूअल फॉर्म थी वो खत्म हो गई। जैसे ओल्ड इंग्लिश में आपने देखा, जैसे संस्कृत में अभी भी है अहम, आवाम और वयम, ठीक है, ड्यूअल भी है दो के लिए, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। तो ये ड्यूअल वाली जो थी वो मिडल में आके खत्म हो गई, ठीक है। और थर्ड पर्सन जो था वो एक familiar they, their और them में settle हो गया। So these are the changes in pronoun। Just to you know recall again, adjective में क्या हुआ, leveling of forms हुई। nominative जो singular था वो सारे cases, all cases, और जो चार cases थे nominative, accusative, dative और the fourth one also, तो वहां पे सभी में यही एक ही लगने लगा। ओके, नॉमिनेटिव सिंगुलर और नॉमिनेटिव प्लूरल, राइट। और सिंगुलर और प्लूरल के एंड में दोनों में ई लगता था, ई एंडिंग के साथ होते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जाते आते आते ये ई भी ड्रॉप हो गया, फोनेटिकली वीक हो गया, तो इसको भी ड्रॉप कर दिया गया। प्रोनाउन में जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे वो दे वर रिड्यूस्ड ग्रेटली, और जो पर्सनल प्रोनाउंस थे वो तीन फॉर्म्स की बजाय अब दो ही बचे, सिंगुलर और प्लूरल, नॉट द ड्यूअल, ड्यूअल वाज लॉस्ट। ओके, सो नाउ चेंजेस इन वर्ब। वर्ब में क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स थे वो बहुत सारे दे वर लॉस्ट। Nearly one third of Old English strong verbs were lost after the Norman conquest। फ्रेंच आने से क्या हुआ, जो बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स थे इंग्लिश के, ओल्ड इंग्लिश के, उनमें से लगभग एक तिहाई, वन थर्ड, दे वर लॉस्ट। सो बट टुडे ओनली हाफ ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग वर्ब स्टॉक्स सर्वाइव। तो आज अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ओल्ड इंग्लिश के थे उनमें से लगभग आधे ही बचे हुए। ओके, देन देयर वाज अ राइज ऑफ वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग जो थे वो लॉस्ट हो गए और वीक जो थे वो ज्यादा आ गए, राइज हो गया उनका। बहुत सारे न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वर्ब्स फ्रेंच और लैटिन से, जिनका जो पास्ट में ईडी लगता है। ओके, ईडी, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, राइट, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। तो वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में
ईडी लगा के जो बनते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गए। देन इसके साथ साथ कुछ जो कुछ वर्ब्स ऐसे थे विच एग्जिस्टेड इन बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स, जो स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म दोनों में थे। ओके, राइट। और वो अभी भी, मतलब इन मिडल इंग्लिश ऑल्सो देवर, राइट। सो जैसे एक है, एक, तो एक का जो पास्ट होता था ऑक, और उसका जो वीक फॉर्म है एक्ड, एक्ट। तो रेनेसां पीरियड तक वो चलता रहा, दोनों चलते रहे। स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है जिसमें अलग ही हो जाता है, जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, राइट, विन वॉन वन। लेकिन जिनके साथ ईडी लगता है, दे आर रिगार्डेड एज वीक। ओके, सो इसी तरह से एग्जांपल और भी लिया इसने, ब्लो, ब्लो में इसने क्या किया, रिजेक्टेड द वीक फॉर्म ब्लोड। और ब्लो का थ्री फॉर्म क्या होता है अभी, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, फ्लो, फ्लू, फ्लोन। सो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म को इसने अडॉप्ट किया, राइट। सो ये कंपटीशन स्ट्रॉन्ग और वीक में चलता रहा, और ये जाके सेटल कब हुआ, मॉडर्न एज में आके। सो देन जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपल फॉर्म्स सर्वाइव्ड एज एडजेक्टिव्स। ओके, स्ट्रॉन्ग जो थे वही। नाउ ग्रामर में जो जेंडर था, यू नो दैट ओल्ड इंग्लिश हैड अ ग्रामेटिकल जेंडर। ओल्ड इंग्लिश का जेंडर जो था वो ग्रामेटिक था। ग्रामेटिक का मतलब वो मेल फीमेल बेस्ड नहीं था। जैसे वो सन को फेमिनिन बोलते थे, मून को मैस्कुलिन बोलते थे, वाइफ, चाइल्ड और गर्ल को न्यूटर जेंडर बताते थे, और वाइफ को वो मैस्कुलिन, क्योंकि इसका एंडिंग जो था वो मैन के साथ, राइट। बट वंस यू रीच द मिडल एज, तो अब ये फंक्शन बदल जाता है। वो ग्रामेटिकल कन्वेंशन से क्या बन जाता है, वो दैट बिकम्स जेंडर कन्वेंशन। ओके, तो बायोलॉजिकल सेक्स जैसे मेल और फीमेल, सो मेल जो है मैस्कुलिन हो जाता है, फीमेल जो है वो फेमिनिन हो जाता है, और जो दोनों नहीं है वो न्यूटर जेंडर हो जाता है। That is basically the inanimate objects. Inanimate means those objects which do not have life, जिनके अंदर lifeless. Okay, तो वो न्यूटर जेंडर हो जाती हैं मिडल इंग्लिश में आते आते। सो दिस इज द चेंज विच हैपन्स इन जेंडर। जेंडर क्या होता है, ओल्ड इंग्लिश में ग्रामेटिकल जेंडर था, वहां पे सन जो फेमिनिन था, मून मैस्कुलिन था, वाइफ, चाइल्ड और गर्ल जो थे वो न्यूटर जेंडर थे, राइट। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आके ये मेल, फीमेल और इनएनिमेट, दैट मींस इट बिकम्स नेचुरल जेंडर। तो इस तरह से ये चेंज जो है वो होता है। देन इफ यू टॉक अबाउट वर्ड ऑर्डर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, सो दैट जैसे जैसे इन्फ्लेक्शन एंडिंग खत्म हो गई, तो क्या हुआ, जो वर्ड ऑर्डर जो था वो एक तरह का फिक्स हो गया। ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारी केस एंडिंग सी, इन्फ्लेक्शन सी, डिक्लेंशन सी, तो उसमें हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ड ऑर्डर जो था वो फ्री था। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख सकते थे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और आप वर्ड ऑर्डर को चेंज कर सकते थे, वर्ब को आगे ला सकते थे। बट जैसे जैसे वो इन्फ्लेक्शंस खत्म हुई, दोज एंडिंग्स इरोडेड, देयर वाज इट अप्रोच्ड अ मोर फिक्स्ड और रिजिड वर्ड ऑर्डर। तो एक ग्रामेटिकल नेसेसिटी बन गई कि हम वर्ड ऑर्डर को ज्यादा ना छेड़े। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेक्शंस जो थी वो खत्म हो गई, राइट। सो इन्फ्लेक्शंस, ओल्ड इंग्लिश जो थी वो बहुत सारी रिलाई करती थी एंडिंग्स के ऊपर, ताकि पता चले कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो उससे एक फ्लेक्सिबल वर्ड ऑर्डर, राइट। देन once you reach this middle English, जो phonologically also there are a lot of endings, word ending which are removed, बहुत सारी चली जाती हैं, जैसे ए आई ओ की जगह ई बचता है। एंड फाइनली वी अप्रोच a kind of system where we have a fixed word order, जहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन जाता है। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बीच में आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। आप इसको इधर नहीं ला सकते, एक्सेप्ट इन पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस में आप ये करते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, बट वो ग्रामेटिकल फंक्शन अलग हो जाता है। लेकिन अब आप ऐसे बदल नहीं सकते इसको, ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही ला सकते हो, ना वर्ब को ऑब्जेक्ट के पीछे ले जा सकते हो। ओके, सो सम ऑफ these structural changes were accelerated by Norman influence, but many were an organic development। तो यहाँ पे समझना है आपको, जो मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस की बात की थी। इंटरनल रीजंस, इंटरनल रीजन क्या था? लैंग्वेज इज एन ऑर्गेनिक एंटिटी। ओके, जैसे एक छोटा पौधा लगाते हो तो समय के साथ वो बढ़ता है, बड़ा होता है, ओके, मैच्योर होता है, स्टार्ट गिविंग यू द फ्रूट्स। उसी तरह से लैंग्वेज इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंटिटी, ग्रोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ चेंजेस जो थे वो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट थी, जो इंग्लिश लैंग्वेज से अपने आप आई, लॉजिक की वजह से, एंड ज्यादा क्लैरिटी के लिए। और एक चेंज जो था वो एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल क्या था? द नॉर्मन इन्फ्लुएंस, Normans who came and settled there as rulers and who were ruling over them. So French came in direct contact with the language of the common people. So it influenced the language as well. So ये दो changes, internal as well as external. So if you talk about vocabulary, अब हमने जो vocabulary है उसमें क्या खोया क्या पाया, राइट? सो ग्रामेटिकल चेंज तो हमने सीख लिया, हमने देख लिया नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में, और प्रोनाउंस में वर्ड ऑर्डर कैसे फिक्स हो गया, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ अब वोकेबलरी में क्या लॉस हुआ और क्या गेन हुआ, राइट? सो देयर वाज अ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वोकेबलरी एज वेल। बहुत सारे जो थे ओल्ड इंग्लिश वर्ड स्टॉक, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, नियरली वन थर्ड ऑफ देम वर लॉस्ट। जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स थे वो सारे के सारे लगभग वन थर्ड जो थे वो चले गए, उड़ गए, दे वर लॉस्ट एंटायरली। और thousands of new words they came in। कहां से आए वो? फ्रेंच से आए और लैटिन से आए, right? So this is how, the change, it resulted in a change in the lexical character of English forever। और ये changes ऐसे थे, irreversible थे। और आज भी आप, if you go and search, you will find thousands of words from French, Latin, Greek, many languages from which English has borrowed। So जो lost हुए words वो कौन कौन से थे? जो नेटिव ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी थी वो लगभग खत्म होगी। किसको, किसकी जगह क्या आ गया? प्रेस्टिजियस फ्रेंच इक्विवेलेंट्स, उनके प्रेस्टिजियस फ्रेंच इक्विवेलेंट्स आ गए, खासकर कहाँ पे? इन द डोमेन ऑफ लॉ, गवर्नमेंट, रिलीजन एंड आर्ट। जिस चीज में वो इन्फ्लुएंशियल थे, उनको रूल चलाना था तो लॉ, ठीक है, गवर्नमेंट चलानी थी तो गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स, रिलीजन में भी एक इन्फ्लुएंस थे उनका, और आर्ट्स एंड लाइफस्टाइल आल्सो। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी थी वो डिस्प्लेस हो गई, उसकी जगह किसने ले ली? फ्रेंच इक्विवेलेंट्स ने। ठीक है, कौन सी डोमेन में सबसे ज्यादा हुआ? लॉ, गवर्नमेंट, रिलीजन एंड आर्ट्स। देन we come to French borrowings। So thousands of French words entered English almost in all domains, हर तरह की भाषा में, पार्लियामेंट से लेके जस्टिस टू डे टू डे लाइफ, जैसे बीफ है, पोर्क है, फैशन है। सो दैट रिफ्लेक्टेड द नॉर्मन डोमिनेंस इन पब्लिक एंड कोर्टली लाइफ। तो दिस वाज द रीजन। जैसे आज आप देख रहे हो, देयर इज अ deluge ऑफ न्यू वर्ड्स, जैसे इन्फ्लुएंसर, वायरल, ठीक है, ये सारी चीजें। पहले वायरल सुनते ही आदमी कांपने लगता था, डर हो जाता था उसको, है ना? आज तुम वायरल बोलो, अरे वो वायरल हो गया, वो वायरल हो गया, मतलब खुशी का दम, पीपल फील हैप्पी। पहले वायरल का नाम लेते ही लोगों को याद आ जाते थे भाई 6-7 दिन जो है वो बुखार चलेगा, टेम्परेचर 105 106 डिग्री, खांसी जुकाम, वायरल का मतलब बिस्तर में लंबे पड़ गए। आजकल वायरल हो गए मतलब वो जी खुशी मनाओ, लड्डू बांटो, वायरल हो गए। Understand? So this is how, new words, they enter the language, and
लैटिन बोरोइंग की बात करेंगे हम, तो लैटिन में सबसे पहला जो एक्सटर्नल कांटेक्ट था इस पर्टिकुलर रीजन का, that was with the Romans. The Romans ruled over this particular region up to 450 AD. किसी और के आने से पहले सबसे पहले रोमन एम्पायर था, उसके बाद रोमन चले गए, लेकिन जो चर्च था लैटिन, that conducted its affairs in Latin, जो रोमन कैथोलिक चर्च था, and church was a very significant power, or you can call it a force in the lives of the people. So लोग दो ही चीजों से डरते थे, एक ऊपर वाले से और एक जो राजा महाराजा होता था उससे, right? So the Latin replaced, remained the language of the church or scholarship. So a lot of vocabulary, learned vocabulary that has entered English via Latin. In addition to this, academic and scientific uh, speech also. So this is how English was enriched by its external contact with the French and Latin. Okay, so we can summarize it finally. This was a period of transformation. You saw how English, being a synthetic language in the Old English period, now becomes an analytic language where the word order is largely fixed. Okay, so the Middle English is one of the periods where there is a leveling in language. A lot of inflections are lost, a lot of inflectional endings are lost. In grammar, we shift from synthetic to analytic structure. Inflections, these endings are reduced. There is a fixed word order, and the natural gender replaces the grammatical gender. Grammatical gender, which was there in the Old English, is replaced by the natural gender in Middle English. If you talk about nouns and adjectives, noun में जो plural s वो लगभग यूनिवर्सल हो जाता है, जो आज इवन टुडे यू आर यूजिंग s and es. ओके, जो एडजेक्टिव्स थे उनकी जो इन्फ्लेक्शंस थी वो लगभग खत्म हो जाती है, सिर्फ एक सिंगल रह जाती है नॉमिनेटिव, सिंगुलर एंड प्लूरल में. Okay, verbs, जो strong verbs थे, they decline sharply. About one third of them are lost. They are replaced by the French verbs, which are rather weak. So weak verbs जो है with ed inflection, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, right? So, or there is a competition between strong and weak forms, जैसे blow, uh, right? Blow का blowed, बट वो compete करता है, और अभी भी हम blow, blew, blown यूज करते हैं strong form. In vocabulary, there is uh, there is a loss of old English words, and they are replaced by French as well as Latin, जो आज भी English dictionary में they are a very important part of English vocabulary. So by the close of Middle English, English had acquired the fundamental grammatical and lexical character that would carry it through Chaucer, through Shakespeare, into the modern era. So that's all about